Good morning to one and all present here. I would like to begin by wishing everyone a very happy Independence Day. This national celebration day, we should all be proud of being a part of India. India is an independent nation that gives us the freedom to follow all our rights, including the right to education and the right to speech. This day should be a reminder of the sacrifices of our valiant freedom fighters who stood up against the colonizers and even suffered harsh consequences unflinchingly so that the later generations could be free. Even though we celebrate Independence Day on 15th August every year, the first step to our independence was taken a long time ago, as far back as 29th March 1857, when Mangal Pandey, one of India's first freedom fighters, shot a British officer and stood up for the rights of us Indians. The importance of Independence Day should not be underestimated, especially by us, as we are 3 to 4 generations removed from the people who saw the perils and disadvantages of foreign rule. It is said that those who forget history are doomed to repeat it. Therefore, we mustn't just celebrate but also understand the meaning, importance, and sense of entitlement we have with our freedom. Let the journey to the 75th year of independence be one of exploring the true meaning of independence. Chitra K. Soman is an Indian athlete. She is an ace sprinter and secured the 7th position in the 2004 Athens Olympic Games and has also represented India at the 2008 Beijing Olympics. Ma'am won the gold medal in 400 meters at the 2007 Asian Championship and silver medal in 4x400-meter relay at the 2009 Asian Championship. She also has several other feathers in her cap. She is also the recipient of the Arjun Award for the year 2007 from the then President of India, Srimati Pratibha Patil. She has kindly consented to virtually address the students of the Oberoi School of Integrated Studies. Hi everyone, this is Chitra Kesoman, Olympian Arjuna Badi. It is my pleasure to address the students of IASIS on this glorious occasion of the 75th Independence Day. This Independence Day is an emotional reminder of sacrifices made by our freedom fighters. This Independence Day is also a special one as we celebrate the achievements of the Indian contingent at the Olympics. Each and every player that was part of the Indian contingent made sacrifices and worked hard to see the Indian flag flying at Tokyo. I would strongly suggest the students listening to my message today to work hard and give back to Mother India without questioning what the country has given in return. We must value our freedom, work hard, respect our elders, teachers, and parents. And last but not least, be honest and work to make India a better country. Wish you all a happy Independence Day. Jai Hind. So now I would request the school director and head of school, Mr. Sanjeev Batla, to say a few words. नमस्ते। ये दिन स्वतंत्र दिवस आप सबको मुबारक हो। हमारे ओएसएस परिवार की तरफ से सभी बच्चों, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भले ही हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है देश के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी जान तक देश पर निछावर करके हमें ये आज़ादी दिलाई है। इस आज़ादी के लिए किसी ने सत्य, हिंसा और धर्म का रास्ता अपनाया, तो किसी ने हमारी रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया। इन क्रांतिकारियों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ देश
को आज़ादी दिलाना था। इस आज़ादी के लिए किसी ने सीने पर गोली खाई तो कोई हंसते हंसते सूली पर चढ़ गया। इन देशभक्तों की याद में मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ हैं मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह, इनका जन्म एक जाट परिवार में सितंबर 1907 में हुआ था। वह आज़ादी को ही अपनी दुल्हन मानते थे। आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते महज 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है और मेरा घर जेल खाना है। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ 14 साल की उम्र में ही 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे और तभी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जब चंद्रशेखर से उनके पिता का नाम पूछा था तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। जहां गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो अहिंसा के रास्ते पर चले थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई थी। गांधी जी को बापू कहकर भी पुकारा जाता है। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गॉडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। अशफाक अल्लाह खान ने करौरी कांड में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अशफाक का जन्म सन 1900 में हुआ था और 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैज़ाबाद जेल में फांसी दे दी गई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर जाऊंगा। बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था और 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने ही ब्रिटिश राज में सबसे पहले स्वराज की मांग उठाई थी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। 28 जनवरी 1856 को जन्मे लाला लाजपत राय, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दिल के 3 प्रमुख नेताओं लाल, बाल, पाल में से एक थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में हुई लाठीचार्ज वह बुरी तरह घायल हुए थे। आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना है। लाल बहादुर शास्त्री जी 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे। शास्त्री जी करीब 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ये कुछ पंक्तियां थीं
इन क्रांतिकारियों की याद में। जय हिंद। Thank you, sir. If humanity is our first religion, then nationality is our first identity. Our social, religious, regional, or political prejudices cannot overpower our identity as Indians. To celebrate the spirit of patriotism and nationalism, the school choir brings forth the very famous NCC song titled Hum Sab Bhartiya Hai.
हम सब भारतीय हैं. Well, Jia, the song instills in us national pride and inspires us to keep marching towards a better future by creating a world of oneness, cohesiveness, peace, love, and tolerance. Now, let's sit back and enjoy a rich fusion dance number of the classical dance forms Kathak and Bharatnatyam on a patriotic number, Jayatu Jayatu Bharate. जयतु जयतु भारतम् जयतु जयतु भारतम् विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत है ये। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमीर चादर ढेके शुद्धिर शूरे गानाए സിന്ധമിഴ്വാനിൽ പുതിയ പൊൻവിടിയിൽ ആയിരമാലവൻ തോന്നിടുതേ विश्व प्रेमाची ओढून सादर खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो उगाड़े जे जागा हुआ भारत है ये 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 जय तो भारतम जय तो भारतम वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम जय तो भारतम हो जाएंगे नई राहें लिख देंगे आशाएं श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम कर्मधात्री जन्मधात्री कई माणुवणुवो धारकोऽसि अंकितमौता सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण सर्व तेरे कोई तड़कन भक्त मोर श्रद्धा मोर तू मते अर्पण प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू युगों युगों से एक छंद साधना का तू ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಿಡಿವ ಪ್ರೇಮ ನಾದನಿ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾದನಿ तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡು ನೀ ಕೆಡ ಬಿಳತ್ತು ನೀ निवार भूमि निंदे मुल्ले कुम्भिडुन्निदा जागल हमार भारत है एक जागे उठो भारत सजो आज जागृत आम भारत कारी इंडिया बाजार बिठो जय तो भारतम जय तो भारतम वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम जय तो भारतम जय तो भारतम जय तो भारतम वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम जय तो भारतम उत्तराव न्याय न्याय
सोमा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चढ़, विश्व प्रेम की ओर चढ़रिया। What a brilliant and intelligent experiment in fusion. You are right, Arani. Patriotism is a bridge connecting citizens to their motherland. If freedom is the absence of fear, then freedom fighters are the real heroes of our nation. Moving on, we now have Parivartan, a Hindi skit showcasing the vision and love of our freedom fighters and their commitment to the cause of liberating the motherland and securing the future of her children. देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। भारत माता की जय जय। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी जिंदगी का जो मकसद था वही मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए। मेरे तो जीवन का एक ही लक्ष्य था, देश के लिए कुर्बानी, जो आज पूरा हो रहा है। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी राख को गंगा में ना बहाकर भारत की मिट्टी में मिला दिया जाए। टूट जाए ये घरौंदा तो कुछ गम नहीं, मुझे तो मेरा प्यारा वतन चाहिए। जीऊं तो तिरंगे के लिए जीऊं, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हाथ बांधो। आज भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, पर क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों को पूरा कर पाने में कुछ योगदान दे पाए? आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्या है ये आज़ादी? क्या वो आज़ादी जिसमें अमीरों ने पैसों से घर भर लिए और भूखा असहाय एक एक रोटी का मोहताज है? क्या वो आज़ादी जिसमें किसान बोझ तले दबकर अपना सब कुछ खो रहा है? क्या वो आज़ादी? आइए देखते हैं इस आज़ादी को एक गरीब किसान के नज़रिए से। हम बर्बाद हो गए, हमारे बच्चों का क्या होगा? बच्चों को पढ़ाना है, भी बेटी की शादी भी करनी है। अब सारी जमीन नौकर के पास गिर गई, अब हम कहाँ जाए, क्या करें? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम कहाँ जाए, क्या करें? कैसी आजादी है ये? गरीब किसान तो आज भी गुलाम है, कुछ सरकारों के तो कुछ जमींदारों के, कुछ रोटी के तो कुछ बोटी के। रोटी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो दाल भी नसीब नहीं होती, सर ढकने को तिरपाल भी नसीब नहीं होता। कैसी आजादी है ये कैसी आजादी? आजादी नहीं है खाने की, आजादी नहीं है कुछ करने की, जीने की बात तो छोड़ो, यहाँ आजादी नहीं है मरने की। कहा जाता है कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है, पर गांव में आजकल बसता ही कौन है? कभी बेरोजगारी, कभी सब्ज बाग, तो कभी पिछड़ने का डर। यही वह वजह है जो गांव को खाली कर रहे हैं। आइए देखते हैं गांव की दशा।
जा बेटा जा, पर अगर तू गांव में रहकर ही कुछ कर लेता तो घर गांव सूना ना होता। माँ, गांव में अब रह ही क्या गया है जो मैं यहाँ रुकूं? ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। हमारी जमीन अब हमारी कहाँ? कभी सड़क के नाम पर, कभी बड़े बड़े होटलों के नाम पर हमसे जबरदस्ती औने पौने दामों में खरीद कर धन्ना सेठों को दी जा रही है, और हमें हमारी ही जमीनों पर नाम मात्र की तनख्वाह पर नौकर बनाया जा रहा है। सभी बुद्धिजीवी कहते हैं ये देश आजाद है, ये पहाड़ आजाद है, पर सच्चाई तो ये है माँ, पहाड़ के किसान की जमीन हथियाकर उसके हाथ काटे जा रहे हैं। झूठे रोजगार के सपने दिखाकर पैर भी काटे जा रहे हैं। पहाड़ में व्यापारी अधिकारी सब आजाद हैं, बस पहाड़ी ही लाचार है, पहाड़ी ही कैदी है। तो देखा आप सभी ने कैसे आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीबी दुर्दशा है। आइए अब एक नज़र डालते हैं यहाँ की राजनीति पर। मद, रिश्वत और हत्या जहाँ का धंधा हो, और वह देश कैसे तरीके करे जिसका नेता अंधा हो। अब आप सबको तो पता ही होगा हम यहाँ क्यों आए हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और किसी न किसी की सरकार बनना तो तय ही है, और इस बार हमारी पार्टी ने इतने सराहनीय काम किए कि मैं क्या ही बताऊं। हमारी पार्टी ने 24 घंटे बिजली दी है। अरे ये बिजली कहाँ चली गई? जनरेटर वनेटर चलवाओ। और हमारी पार्टी ने स्वास्थ्य, शिक्षा सभी की उचित व्यवस्था कराई। नाले दिए, शौचालय दिए, सब कुछ दिया। जरा नजर तो डाल के देखो अपने आसपास। अब हम हनुमान जी तो है नहीं कि अपना सीना चीर के दिखा दे। और सुनो भाई और बहनों, हमारी पार्टी ने बड़ों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी है। सड़कें तो मानो स्वर्ग का रास्ता हो, जो भी चले स्वर्ग पहुंच जाए। नेताजी, मेरी बेटी को जो स्कॉलरशिप मिली थी उसके बदले में डॉक्टर का बाबू 15,000 रुपए मांग रहा है। अगर आप इस पे साइन कर दो तो पैसे ना मांगेगा। अरे लाओ जरा, कौन है वो जो तुमसे रिश्वत मांग रहा है? अरे हट बुढ़वा, पेन नहीं, स्टाम्प लाओ, स्टाम्प। चलो, और हाँ, स्कॉलरशिप के पैसे से 10,000 रुपए पार्टी फंड में भी डाल देना। न पूछो हाल वतन का, वतन को डसने वाले ही वतन पर राज किए बैठे हैं। देश समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मुझे लगता है उन लाखों शहीदों के सपनों पर पानी फिर गया है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। चारों तरफ भ्रष्टाचार, नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। नहीं, जब देश में चारों ओर नकारात्मकता और समस्या विद्यमान है, दूसरी ओर इसके समाधान भी उपलब्ध हैं। मैं बस आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि इस करवट बदलते युग में खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपकी कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक ही मुकाम है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर अमल में। तो क्या आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं? What a wonderful performance. This Independence Day, let's pledge to work selflessly towards the making of a better India. An India steeped in Gandhian philosophy and thought of truth, non-violence, harmony, morality and simplicity. Let us be grateful to our forefathers who fought valiantly in India's independence movement. Thank you. Vande Mataram.